لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع یدین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، کر لو، ٹھیک، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے نا۔ اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ والی خرابی، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، والعیاذ باللہ۔ اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا۔ مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے، اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں، آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو، باقی والے نہ کیا کرو، وہ بھی حکم کوئی نہیں۔ حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بات ختم ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر اٹھائے، اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی، تو حکم تو امپلائڈ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں۔ تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251، وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی، چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا، تو یہ کریں نا، نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے، بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے۔ تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی، اب یہاں حکم بھی ہے، پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا، تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا، تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ الحمدللہ عمل ہے، اب اس پہ حکم ہے، اب اس پر عمل کریں۔ اور ویسے ان جنرل جوامع کلمات کے تحت پوری نماز کا حکم ہے۔ تو بھائیو میں نے پچھلی دفعہ بھی علماء عرب کے بارے میں بتایا تھا، آج میں تھوڑا کھل کے بتا دوں کہ علماء عرب نے، جہاں میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے پوری امت کے اندر رفع الیدین کی سنت اب انٹرنیشنلی چینلز کے ذریعے پہنچی کہ امام کعبہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آمین بھی اونچی ہوتی ہے، یہ بہت ان کے پازیٹیو پہلو ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی حج عمرے کے بعد لوگوں میں اب ٹالرنس آئی ہے، ورنہ ایک وقت تھا آج سے 20-30 سال پہلے تک گاؤں ایریا میں اگر کوئی رفع الیدین والا یا آمین اونچی والا گھس جاتا تھا تو مسجد کو دھوتے تھے، لیکن اب کافی ٹالرنس آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کیبل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں سعودی عرب کا چینل لائیو دیکھا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ شریف میں تو جہاں بت توڑے گئے تھے ادھر تو ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین آتا تھا، پاکستان کے مولویوں کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا۔ تو اس پہ میں ایک ننگا جملہ بولتا ہوں کہ دودھ ہمیشہ بھینس کے نیچے سے صحیح ملتا ہے، گوالا دودھ دے گا، کوئی پانی ملا کے دے گا، کوئی چھپڑ کا پانی بھی بیچ میں شامل کر دے گا، جوڑ کا بھی۔ تو بھائی یہاں پر پھر وہی ہے کہ اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، جو آیا اس نے اپنی مرضی کا دین یہاں لوگوں کو سکھا دیا، ٹوٹی پھوٹی فارم میں سکھایا۔ تو وہاں پر یہ ہے، اس اعتبار سے جو نیو مسلم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں جانے کا۔ لیکن علماء عرب کی 3 خرابیاں بہت بڑی ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ سنت طریقے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک تو جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا، حالانکہ حکم تھا جلسہ استراحت کا، میں نے بتا دیا۔ اور عبداللہ بن باز نے جو نماز نبوی کا طریقہ چھاپا ہے اپنا،
मुफ्ती आजम सऊदी अरब 1933 से 1999 तक 66 साल तक, उन्होंने अपनी नमाज के तरीके में ये लिखा है कि दूसरे सजदे के बाद भी बैठ के उठना चाहिए, लेकिन अगर कोई ना बैठे तो जायज है। भाई आपको किसने इख्तियार दिया कि आप अपनी मर्जी से फतवे निकालते फिरें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे हैं कि दूसरे सजदे के बाद बैठ, सही बुखारी 6251, और आप ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम्हें किसने ये अथॉरिटी दी कि तुम ये बात करो कि खैर है? किसी को इजाजत नहीं है, चाहे वो मुफ्ती आजम सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी हो, कोई ताबी क्यों ना हो। और जी ताबीन दफा छोड़ गए थे, छोड़े, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क वहां से पड़ेगा जब सहाबी का नाम आ जाएगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये गलती जलसा इसरा, दूसरा रुकू के बाद हाथ बांधना, वो मैंने पिछली दफा 8 पॉइंट्स बताए थे कि पता नहीं कहां से इन्होंने ये मामला निकाल दिया। अबू हुमैद सादी की हदीस में वाज़ेह मौजूद है कि वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। हर हड्डी अपनी जगह पर खड़ी हुई हालत में, नॉर्मल हालत में कहां होती है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और अहले तशय्यो का इजमा है, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली सब का, कि रुकू के बाद हाथ छोड़े जाएंगे। और मैंने वहां इल्मी गिरफ्त उनकी की थी। और तीसरा, सजदे में जाते वक्त वो पहले घुटने लगाते हैं और बाद में हाथ। हालांकि मैंने सही हदीस अबू दाऊद से बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज का हुक्म फरमाया कि ऊंट की तरह मत बैठो, और ऊंट को बिठा के किस तरीके से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऊंट को बिठा के गए हैं। मौलवियों ने उसकी तशरीहात नहीं करनी, उसके आगे अल्फाज हैं कि पहले हाथ लगाओ और बाद में घुटने लगाओ। और 803 नंबर सही बुखारी में जो हदीस है, उसके बाब की हेडिंग में इमाम बुखारी लेकर आए कि अब्दुल्ला बिन उमर भी सजदे में जाते वक्त पहले हाथ और बाद में घुटने लगाते थे। और इसकी पूरी सनद जो है वो बाकी किताबों में, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर और बाकी किताबों के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 3 खराबियां हैं उनके अंदर। अब वो मैं ट्रुथ रिवील करता हूं कि असल में हुआ क्या है, यहां पे मैं समझाता हूं। यह मसला आज तक किसी ने नहीं खोला कि ताबईन ने रफुल यदैन करना छोड़ क्यों दिया था। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह अभी अब्दुल्ला बिन बाज ने किताब लिख दी ना कि दूसरे सजदे के बाद मर्जी है बैठ जाए, उठ भी जाए तो खैर है। अब वो इतनी बड़ी अथॉरिटी बने हुए हैं ना, अब 500-600 साल जब गुजरेंगे तो लोग कहेंगे जी देखो 500 साल पहले एक इतने बड़े मुफ्ती आजम अरबैन दे कह के गए ने कि जी दूसरे सजदे के बाद ना भी बैठे तो हर्ज नहीं। और अभी प्रैक्टिकली तो इमाम काबा कोई नहीं बैठता ना, डायरेक्ट खड़ा होता है और लोग देख भी रहे हैं। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा और लोग जलसा इसरात को भूल जाएंगे। किताबों में लिखा होगा, उस बंदे की अपनी किताब में भी, अब्दुल्ला बिन बाज की किताब में भी लिखा होगा, लेकिन उसके फॉलोअर्स कह रहे होंगे जी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, बस बुजुर्गों ने फरमा दिया, काफी है। ये होगा बिल्कुल इसी तरीके से ताबईन के दौर में भी चंद सुस्तुल वजूद लोगों ने, जो मैं समझता हूं, उन्होंने रफुल यदैन करने में बड़ा तरद्दुद था। और ये मेरा जुमला भी याद रखें, रफुल यदैन और जलसा इस्तराहत और सजदे में जाते वक्त हाथ पहले लगाना, ये नमाज की ब्रेकें हैं। इससे नमाज का सुकून बढ़ता है। जिसने फटाफट नमाज पढ़नी है ना, उसके लिए मुसीबत है ये चीज, क्योंकि वो पहले रफुल यदैन करेगा सुकून के साथ, फिर भाई तो वो फौरन जाएगा, फौरन उठेगा। अब जो बंदा पहली रकत में बैठेगा, फिर सुकून से जलसा इस्तराहत के बाद हाथों पर इत्माद करके उठेगा, वो डायरेक्ट दूसरी रकत में उठे तो वो अपना 1 मिनट बचा लेगा। तो ये सुस्तियां करते करते, ये ताबीन के दौर में शुरू हो गई थी, करते उन्होंने कहा खैर ये छोड़ दे, खैर करते करते नमाज का हुलिया बिगड़ गया। ये मुझे समझ आई है कि ये मामला किस तरीके से खराब हुआ है। वरना अहले सुन्नत अहले तशय्यो, ये चंद एक मसाइल इतने क्रिटिकल, उनमें ये मुत्तफिक है रफुल यदैन वाले मसले में भी, जलसा इस्तराहत में भी, और अहले तशय्यो भी सजदे में जाते हैं पहले हाथ लगाते हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से अहादीस का जमा होना। तो ये असल में मसला इस तरीके से खराब हुआ है और ये सारे के सारे मामला फिर बिगड़ते चले गए और अब मुसीबत बन गई है हमारे लिए। हम बताते हैं लोगों को, उन्होंने किताबें पता, वो पॉइंट भी इंशाल्लाह आ रहा है कि मैं इसका भी जवाब इंशाल्लाह दूंगा। तो सुन्नत को हल्का ना समझें। ये जो लोग कहते हैं ना जनाब खैर ही है ना जी, सुन्नत है, तो ये हदीस भी जामिया तिरमिज़ी की सुन लें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2154, अल मुस्तदर लिल हाकिम में भी मौजूद, और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, और लानत का मतलब है ऐ अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर रखना। उनमें से छठा बंदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरी सुन्नत को जानबूझकर छोड़ देता है। आगे आप समझो, आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को छोड़ने वाला लानत का मुस्तहिक है जब उस पर यह बात खुल चुकी है। अब मुझसे यह ना फतवा लें कि उन ताबीन का क्या बना। हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि हम गलती पॉइंट आउट करते हैं, फतवा नहीं लगाते।
जिस तरह हम कहेंगे कि अगर भाई आपने झूठ बोला तो आप लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे, लेकिन आपको हम लानती नहीं कहेंगे झूठ बोलने पर भी। इसीलिए हम यजीद पर भी लानत नहीं करते। हाँ, यजीद लानत का मुस्तहिक हुआ, वो हमने कुरान और हदीस से साबित किया, लेकिन खुद नहीं भेजते। वो खुद हो जाए उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजने से मना फरमाया। रहा मसला इसका हुक्म वाला, तो फिर वही बात करूंगा कि पहले का हुक्म कहां पर है, और ये भी छोड़ दिया करें कभी कभार, ईद वाला रफल ईदैन भी छोड़ दिया करें। ये वही इल्मुल कलाम वाला फक्की वाला जवाब कि ठीक है, फिर पहले के साथ चिड़ क्यों है, पहले दूसरे और तीसरे के साथ चौथे के साथ चिड़ क्यों है, पहला भी छोड़े, डायरेक्ट आ गया हाथ बांधे अल्लाह अकबर कह के कि जी सुन्नत ही है। लेकिन ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं जिद के ऊपर। अब सही बुखारी में अब जो मेरी तरफ से 3 जवाब है कि जो रफल ईदैन करता है उसकी नमाज होती है या नहीं होती, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 3 जवाब बनाए हैं बड़े तफक्कुर करके, वो आप सुन लीजिए। पहला जवाब सही बुखारी 791, ज़ैद ताबई कहते हैं कि हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक बंदे ने नमाज पढ़ी और बड़ी तेजी के साथ उसने रुकू और सजदे किए नमाज के। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो ज़ैद ताबई कहते हैं हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको कहा, सही बुखारी 791 नंबर हदीस, अगर तू इस तरीके से नमाज पढ़ता रहा तो तू उस तरीके पर नहीं मरेगा जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अब मेरा भी जुमला सुन लें, आज वो जिंदा होते हुज़ैफा इब्न यमान तो मैं उनको कहता कि आप मेरा जुमला भी इसमें ऐड कीजिए कि जो बंदा रफ़ुल यदैन नहीं करता रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, तो वो उस तरीके पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं मरेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया है। बस हम ये कहते हैं, नमाज होती है नहीं होती इसको छोड़े। दूसरा जवाब जुज़ रफ़ुल यदैन में है, वही ताबईन वाला जो चक्कर शुरू हुआ था। 15 नंबर हदीस सही सनद से कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंकरियां मारते थे उस बंदे को जो नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते हुए रफ़ुल यदैन नहीं करता था। ये सहाबी मारते थे कंकरियां, यानी कि वो कहना चाहते थे वो सुस्तुल वजूद की क्या काम कर रहा है तू, कंकरियां मारते, छोटे छोटे पत्थर मारते थे ताकि उसको याद रहे, जैसे स्कूल में टीचर भी कभी डंडा मार के सजा देता है। अब्दुल्लाह बिन उमर कंकरियां मारते थे। उस वक्त सुस्तुल वजूद लोग आ गए थे। जैसे माजरत के साथ अब मैं कड़वी बात भी कर दूं, जैसे हमारे जो अहले सुन्नत में से अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं, अब उनके उलमा चीखते भी हैं लेकिन उनकी इमाम बात नहीं मानती। किस मामले में? नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। हालांकि नंगे सर नमाज होने पर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सबका इत्तफाक है, लेकिन सुन्नत के तो खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अलावा भी सर ढांप के रखते थे। और मैंने पिछली दफा भी बताया था कि सूरतुल अराफ में है कि अल्लाह की मस्जिदों में जीनत के साथ आओ, कम से कम नमाज के लिए तो जीनत बना लिया करें। नमाज का हिस्सा नहीं है लेकिन सुन्नत तो है। असहाबुल हदीस अहले सुन्नत वही होगा जो सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। तो अब इनके उलमा ने लिखना शुरू किया है लेकिन अवाम बात ही नहीं मान रही। और जो बंदा सर ढांपने में बात करता है उसको कहना है बरेलवियां नहीं गला शुरू करती हैं। तो ये बिल्कुल वही साहब हुआ है कि रफ़ुल यदैन करना छोड़ दिया। वो चलते चलते अब तो ताबईन के दौर में भी लोग रफ़ुल यदैन छोड़ चुके थे, कुछ सुस्तुल वजूद लोग। तीसरा जवाब इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, उनसे इमाम अबू दाऊद ने जो मसाइल अहमद नकल किए हैं उसमें सफा नंबर 33 में है कि इमाम साहब से एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हुआ जो हमसे लोग करते हैं कि बताइए कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त उसकी नमाज हो जाती है कि नहीं। जरा जवाब सुने अहमद बिन हंबल का। वो कहते हैं मुझे यह तो नहीं पता कि उसकी नमाज होती है या नहीं होती। जरा जवाब देखें। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि नमाज होती भी है कि नहीं होती, ना मैं होने की गारंटी देता हूं ना होने की। अलबत्ता वो शख्स फी नफ्स ही नाकिस नमाज पढ़ने वाला तो है, नाकिस नमाज पढ़ने वाला तो है। यानी उन्होंने बिटवीन द वर्ड्स वही फतवे से बचने के लिए इस तरीके से कह दिया कि उसकी नमाज नाकिस तो है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रास्ता तो हटा हुआ है। और मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूं इस मामले में कि वो जो सूरह मोहम्मद की आयत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अपने अमाल को बातिल मत करो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया उसी के मुताबिक अमल करो। अब सेकंड लास्ट पॉइंट नंबर 7। अच्छा जी, फिर इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल थे जो ये नहीं करते थे। ये आखिरी अरबा। अब इसमें मैं कुरान की आयतें पढ़ना शुरू करूंगा, क़यामत दिन बुजुर्गों के साथ क्या होना है जिनकी वजह से लोग गुमराह हुए। सूरह अहज़ाब का आखिरी रुकू पढ़े। अल्लाह ताला फरमाता है कि दोस्त की फिर उस वक्त कहेंगे अल्लाह हमारे बुजुर्गों और हमारे इन बड़ों को दुगना अज़ाब दे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए थे। और सूरह हामी में सजदा में आता है अल्लाह हमारे बुजुर्गों को एक दफा हमारे हवाले कर दे,
हम उनको अपने पांव के नीचे रोंदेंगे, इनकी वजह से हम गुमराह हुए। और मेरे एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की, वो कहता है हमारा तो दुनिया में ही गुस्सा है, आखिरत में तो होगा। जब हम किताब और सुन्नत के मनहज पे आए तो हमें इधर भी गुस्सा आता है, यार हमारे मौलवियों में इतना पाल किया, इनको लितर मारने चाहिए। वाकई ये कुरान की आयत ठीक है कि क़यामत वाले दिन सूरह आमीन में सजदा में आता है, लोग कहेंगे अल्लाह हमारे बुजुर्गों को हमारे हवाले कर, हम इनको पांव के नीचे रोंदे, जिन्नों को भी और इंसानों को भी जिन्होंने हमें गुमराह किया था, कि हम इनकी, ताकि ये असफलीन में से हो जाए। वलियाज़ु बिल्लाह ताला। क्या इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नमाज नहीं होती थी? क्या फलां ताबी की नमाज नहीं होती थी? अच्छा, इसके भी उसूली जवाब मैंने 5 तैयार किए, छोटे छोटे। पहला उसूली जवाब यह है कि भाइयों, कुरान और सुन्नत और सलफ का इजमा यह है मेन चीज, इसको हमने फॉलो करना है। और कुरान पाक में भी यही हुक्म है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम यौम आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखते हो तो जब भी झगड़ा हो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करो। और आज यानी किताब और सुन्नत एज एन इंस्टीट्यूशन अल्लाह और उसके रसूल हमें मौजूद है, एज एन इंस्टीट्यूशन यानी किताब और सुन्नत। दूसरा जवाब, खुद हमारे आइम्मा इकराम ने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम जाफर सादिक, तमाम आइम्मा ने फरमाया कि हमारी कोई बात भी सही हदीस से, इवन सहाबी के कौल से भी टकरा जाए उसको छोड़ दो। लिहाजा हम इमामों को भी मानते हैं, इमामों की भी मानते हैं। हमें पता चला कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब ये बात, अब उसकी भी कोई सनद नहीं है, क्योंकि इमाम शाफी की किताब भी है, इमाम अहमद बिन हंबल की किताब भी दुनिया में है, इमाम मालिक की किताब भी मौजूद है, इमाम हनीफा की अपनी किताब कोई मौजूद नहीं, वरना हम देखते तो उस पर बल इनडायरेक्टली जो पता चलता है। तो हमने उन्हीं की बात पर, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात पर अमल किया कि हमें इतनी सही हदीस मिली, हमने उनका कॉल छोड़ दिया अगर है कहीं पर। और खुद हमारे हनफी भाइयों ने भी छोड़ा हुआ है। यह जवाब नंबर है 4। 3 मसले खुद अहनाफ ने छोड़ दिए इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। नंबर 1, और ये मसले कहां है? फतावा अलमगीरिया में, दुर्र मुख्तार में और अलमोता इमाम मोहम्मद में, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीने को हरम नहीं मानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम अहनाफ मदीने को हरम मानते हैं। बुखारी और मुस्लिम में 50 हदीसें हैं फज़ाइल मदीना पे और उसके हरम होने पर। दूसरा मसला, शवाल के 6 रोजों को वो बिदअत कहते थे, और ये खाली इमाम हनीफा नहीं है, इमाम मालिक भी अलमुत्ता इमाम मालिक में लिखते हैं कि मैंने अहले मदीना में से किसी को ये रोजे रखते हुए नहीं देखा। अब उनसे भी बात छुपी रहेगी। हालांकि बुखारी शरीफ को छोड़कर बाकी 5 किताबें कुतुब सित्ता की, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा में हदीस है, जिसने रमजान के बाद शवाल के 6 रोजे रखे, गोया कि उसने पूरे साल के रोजे, पूरी जिंदगी के रोजे रखे, अगर वो हमेशा रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बरेलवी था उस वक्त भी रखता था, सारे बरेलवी रखते हैं शवाल के 6 रोजे। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल उन्होंने छोड़ दिया। तीसरा, वो अकीके को बिदअत कहते थे और जमाने जाहिलियत की रस्म मानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, आज सब अकीका करते हैं। बुखारी में पूरा चैप्टर किताबुल अकीका के बारे में, जामिया तिरमिजी में, सुनन अबी दाऊद में मैंने डिटेल के साथ कुर्बानी वाले लेक्चर में बताया। और 5वां उसूली जवाब यह है, जो मैं बिल्कुल क्लियर कट कर कह दूं आपसे, कि मैं अपनी जात के बारे में ये कहता हूं कि मैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई भी बड़ा इमाम हो, मैं उसकी जूतियों के खाक के बराबर भी नहीं हूं, लेकिन हम किसी भी बुजुर्ग को प्रॉफिट के दर्जे पर फायज नहीं कर सकते। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से आवाज बुलंद करने पर अमाल अकारत हो जाएंगे सैयदना अबू बकर और उमर के, क्योंकि बुखारी में ये आयत उनके बारे में नाजिल हुई थी। हुजूर से बदतमीजी नहीं की, आपस में लड़ पड़े थे हुजूर की मौजूदगी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आवाजें बुलंद होगी। अल्लाह ने फरमाया आवाज बुलंद की अमाल अकारत हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, यानी तौबा की भी तौफीक नहीं मिलेगी। खबर ही नहीं होगी तो तौबा कैसे होगी? तो जो बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबले पर कहे कि हमारे फलां बुजुर्ग ने, हमारे फलां इमाम ने कह दिया, तो हम यही तो फिर रोना रोते हैं। हम क्यों अपने आप को कहते हैं हम मोहम्मदी हैं? जब ये लोग अपने आप को हनफी, शाफी, मालकी, हंबली कहेंगे तो हम अपने आप को मोहम्मदी के, उन इमामों ने नहीं कहा। और ये मेरा चैलेंज है, कुरान में, हदीस में या किसी इमाम के कौल में दिखा दें ज़ईफ सनद से भी किसी इमाम ने कहा कि मेरी तकलीद करो। ये तो असल बीमारी है खुद। और ये भी याद रखें कि इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम मालिक ये रफल यदैन करते थे। अगर कोई कहना मैं इसलिए रफल यदैन करता हूं कि ये इमाम करते थे, तो उसका रफल यदैन भी 0 से ज़रब है। जब तक अपनी निस्बत को इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत नहीं करेगा, हमें शाफियों की नमाज भी कोई नहीं चाहिए जब तक वो ये नहीं कहते कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये नमाज पढ़ता हूं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि क़यामत वाले दिन हमें यह नहीं पूछा जाना कि आपने इमाम हनीफा के पीछे चले थे या इमाम शाफी के पीछे या इमाम मालिक। हमें एक बंदे की इताअत के बारे में पूछा जाएगा, वो इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7281 नंबर हदीस है, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में हक और बातिल के दरमियान फर्क है। फर्क, कुरान भी अल फुरकान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल फुरकान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों 99% मुहद्दिसीन, और ये भी मैं एहतियातन कह रहा हूं, वैसे कहना चाहिए 99.99% मुहद्दिसीन, ताबईन, साहबा तो 100%, सब के सब इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। अब एहतियात किसके अंदर है? और खुद जिन बुजुर्गों के नाम लेवा है, इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 505 हिजरी, उन्होंने कीमिया सादत में नमाज का यही तरीका लिखा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 571 हिजरी, उन्होंने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका यही लिखा। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब ने तर्जमे छापे हुए हैं, वो खुद पढ़ सकते हैं। और खुद शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 1176 हिजरी, उन्होंने हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा में लिखा। और उस जमाने में तो आपको पता है रफल यदैन करने का मतलब था घाटा उतार दिया जाए, तो उन्होंने डरते डरते एक जुमला लिखा कि रफल यदैन करने वाले मुझे ना करने वालों से ज्यादा महबूब हैं, क्योंकि ये अहादीस बड़ी मजबूत है। 3 लेक्चर्स मैं यहां पर बता दूं, क्योंकि मैं ये टॉपिक तकलीद का छेड़ बैठा। पहला लेक्चर है मसला नंबर 10 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, तकलीद और इत्तबाए सुन्नत में फर्क क्या है। 50 मिनट में बिल्कुल मसला कंक्लूड कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा लेक्चर मसला नंबर 11 के नाम से, तकलीद और पहले 300 साल के मुसलमानों के बुजुर्ग असलाफ। और तीसरा लेक्चर मसला नंबर 31 के नाम से 40 मिनट की गुफ्तगू है, इजमा की हुज्जियत और उसकी 17 मिसालें। असल में अक्सर मसाइल जो है वो इजमा से साबित हो जाते हैं, तकलीद की जरूरत ही नहीं रहती। और इज्तिहाद जो है वो इस्लाम का चौथा रुकन है और क़यामत तक जारी रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाए जनाब आखिरी कंक्लूडिंग पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 8 कि सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अब यह दावत, पुरजोर दावत मेरी तरफ से, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि माशरे की शर्म छोड़े और माशरे के बुत गिरा दे रफल यदैन करके। यह रवायत तो कोई नहीं साबित, लेकिन यह जुमला ठीक है। माशरे के बुत गिरा दे रफल यदैन करके, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। मैं भी 31 साल तक इसी तरीके से करता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल के बाद तकरीबन 28 मई 2008 को यौम तकबीर, जो एटम बम वाला दिन था, उसके 10 साल पूरे हुए थे, 1998 से 2008। यौम तकबीर 28 मई 2008 को अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की जहरी नमाज से मैंने सुन्नत के मुताबिक बुखारी और मुस्लिम के तरीके पर नमाज शुरू की। और यह मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, अला वजह बसीरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि आज तक 5 साल होने को आए हैं तकरीबन, मुझे नमाज में रफुल यदैन का जो मजा आता है वो आज भी मैं उसी तरीके से फील करता हूं। लेकिन वो इस तरीके से ना किया जाए, वो जिस तरीके से मैंने सिखाया है, पूरे का पूरा हाथ बुलंद। और यहां पर जो मैंने प्रैक्टिकल और आपको बताना याद नहीं रहा, पिछली दफा फिर हमने अगली दफा तकरीबन अगले दिन जो है वो 45 मिनट की रिकॉर्डिंग फिजिकल करवाई थी डिजिटल कैमरे के जरिए, वो भी लेक्चर के साथ अपलोड होगी। पूरा तरीका नमाज का, जमात में खड़े होने का, एक एक चीज 45 मिनट में रिकॉर्ड होके अपलोड हो चुकी है। तो उसमें मैंने रफुल यदैन का सही तरीका भी प्रैक्टिकली करके बताया है। अब यहां पर भाइयों मेरा एक जुमला याद रखिएगा कि रफुल यदैन करना तौहीद का किला है। रफुल यदैन करना तौहीद का किला है। रफुल यदैन करना तौहीद का किला है। खुसूसन इंडिया पाकिस्तान में जितने लोग रफुल यदैन से नमाज पढ़ते होंगे, इंशाअल्लाह अकीदा तौहीद उनका ठीक होगा। ये एक लिटमस टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां पर वो बात भी याद रखें, जब मैं किताब सुन्नत के मनहज पर आया तो लोग अक्सर ये बात हमें भी करते हैं, आप लोगों को भी करते होंगे, जी पहले बरेलवी सन, फिर देवबंदी हुए, फिर जनाब अहले हदीस हो गए, किताब सुन्नत के मनहज पे आ गए, ऊणे कादियानी हो जाएंगे, ये अक्सर कहते हैं। हालांकि इनसे पूछें, इनके मौलवियों से पूछें कि कादियानियों को भी नमाज पढ़ते हुए देखा? मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि कोई सुन्नी असहाबुल हदीस अहले हदीस कादियानी नहीं हो सकता। क्यों? कादियानी बगैर रफुल यदैन के हनफी तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। अहले हदीस तो अक्सर होते ही रफुल यदैन की वजह से हैं। यह कैसे हो सकता है कि वो दोबारा उधर चले जाए? क्योंकि गुलाम अहमद कादियानी खुद हनफी था। अभी भी आप कादियानियों की इबादतगाह में जाए, वो बगैर रफुल यदैन की नमाज पढ़ते हैं। तो ये उनको ये बताया गया नहीं वो कादियानी इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े झूठ
ना किसी ने अंदर जाना है ना देखना है, तो मौलवी की गुड्डी चढ़ी देगी।